हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th में से फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे ऐसे इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे, एंड इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ then we will get a straight line, therefore it is called linear equations in two variable. Let us study its standard form. Normally it is shown in this format: ax plus by plus c is equal to 0. Here a, b and c belongs to real number. रियल नंबर मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, अदरवाइज इरेशनल नंबर भी रहेंगे, बट द कंडीशन इज दिस ए, बी एंड सी शुड नॉट बी ज़ीरो. इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए. And its x and y are some variables. Now we will study some properties related with this standard form. Here you can see x and y are two variables. Therefore, its first property is it contain two variables. The degree of each variable is 1. Here you can see degree of x and y. Both variables have degree 1. These a and b, which are coefficients of variable x and y, and its c is any type of constant. So we can define the definition of linear equation in two variable as an equation which contains two variables and the degree of each term. यहाँ पे तीन टर्म है. फर्स्ट टर्म इज ए एक्स, सेकेंड टर्म इज बी वाई एंड द थर्ड टर्म इज सी. तो इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. For example, 3x minus 5y is equal to 7. So here variables are x and y. 3 and minus 5 are coefficients and 7 is nothing but a constant. So if we compare this equation with our this standard form, here value of a is equal to 3, value of b is equal to minus 5 and value of c is equal to minus 7. Because when we take this minus 7 on right hand side, left hand side, it will become minus. Now identify whether the given equation is linear equation in two variable or not. In this first equation, you can see root 3 x plus y is equal to 5. Now observe, is there are two variables? Yes, there are two variables x and y, and their degree is also equal to 1. Therefore we can say the power of both variable is 1, and therefore it is linear equation in two variable. Let us study next one. M plus 5 root n is equal to 1. Here now this second variable n comes in under root symbol. So if we convert this root n, we will get this equation, that is n raised to 1 upon 2. Now the degree of each variable is not 1, or you can say the degree of n is not 1, that is equal to 1 upon 2. So therefore it is not a linear equation. Let's study the third one. Now observe the variables. These variables comes at denominator. So when we move it on numerator, their power will be get altered. Means here their power is 1, but when it goes on numerator, it will become minus 1. So again, the power of p and q is not 1. Therefore you can say this is not a linear equation in two variable. Now let us study next part from this chapter, that is simultaneous linear equation. You already studied this simultaneous equation in your 9th standard.
यहाँ पे साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, हम लोग एक साथ यहाँ पे दो इक्वेशन स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन एक साथ स्टडी करने वाले हैं और दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन में हम लोग कैंसलेशन पार्ट रखते हैं और सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू क्रिएट करेंगे और वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट अस स्टडी फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड. बिफोर स्टडिंग दिस मेथड लेट अस स्टडी इट्स ट्रिक्स. तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक है ये आप सब लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो ये जो ट्रिक्स हैं वो आप फॉलो करेंगे. सो द फर्स्ट ट्रिक इज सिलेक्ट दोज वेरिएबल्स हुज कोएफिशिएंट्स आर सेम. हमारे पास जो दो एग्जाम्पल थे, दो इक्वेशंस थे, उसमें से हम लोग ऐसे वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे जिनका कोएफिशिएंट सेम रहेगा. एंड इफ दिस कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम देन मेक इट सेम so that you can easily cancel it. So once you make it same, the next step is observe their sign. यहाँ पे दोनों का साइन प्लस है या माइनस है वो हमें ऑब्जर्व करना है. इफ़ बोथ साइंस आर सेम देन डू सब्सट्रैक्शन. अगर दोनों का साइन सिम्बॉल सेम रहेंगे मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे. अदरवाइज वी विल डू एडिशन. मतलब जहाँ पे सिम्बॉल्स सेम नहीं रहेंगे तो हम लोग एडिशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टडी अवर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. हम लोग यहाँ पे इसका जो कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. हियर आई एम गिविंग दिस बोथ इक्वेशंस एज नंबर 1 एंड नंबर 2. नाउ ऑब्जर्व these both equations and select those variable who have coefficient 1. तो अभी हम लोग जो अभी ट्रिक्स जो हमने स्टडी किया है ये अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ये ट्रिक्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं. ये दोनों इक्वेशन में हम फर्स्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं. इसमें हम लोगों को ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसका कोएफिशिएंट सेम है. So you can see here in both equation y का जो कोएफिशिएंट है that is not given means there is 1. तो दोनों का जो कोएफिशिएंट है that is same. Now go to third step. यहाँ पे हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग ये सेकेंड स्टेप अवॉइड करने वाले हैं. ऑब्जर्व देयर साइन. देयर साइंस आर ऑलरेडी गिवन इन अपोजिट. अपोजिट है ये प्लस एंड माइनस. तो हम लोग अगर ये अपोजिट है मीन्स इट इज़ नॉट सेम देन वी विल गो फॉर एडिशन. सो हियर वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है. तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो y है वो y डायरेक्टली कैंसिल होगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं. तो किसी का भी सिम्बॉल चेंज होने वाला नहीं है. तो इफ़ यू ऐड दिस टू इक्वेशंस वी विल गेट 5x इज इक्वल टू 5. नाउ टेक दिस 5 टू अनदर हैंड साइड. इट विल गेट डिवाइड एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस x इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन but try to substitute it in a simplest equation. Here I can see equation number 1 is in simple form. So I am substituting this x is equal to 1 in equation 1. So first write down this equation 1 and then substitute value of x. So 2 into 1 is equal to 2. Take this 2 to another hand side. It will become minus. And you will get value of y is equal to 2. So by using this elimination method, here we are solving
simultaneous solution. So always write here value of x and then value of y. So this is the simultaneous solution of this simultaneous linear equation. Now let us study the second method, substitution method. अभी हम लोग फिर से इसका ट्रिक्स देखेंगे कि कौन से जो स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट अ वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट इज 1. हम लोगों को x और y में से ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ है. इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन मेक इट 1 जस्ट बाय डिवाइडिंग विथ सेम कोएफिशिएंट. जिसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, सपोज 2x है तो हमें 2 रिमूव करना है, तो वी विल डिवाइड इट बाय 2. देन थर्ड वन इज टेक अदर टर्म टू अनदर हैंड साइड. जो रिमेनिंग टर्म रहेगा, मतलब हम लोग अभी x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके साथ में y भी रहेगा. सो टेक दिस y टू अनदर हैंड साइड एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू टू द रिमेनिंग इक्वेशन. हम लोगों के पास अभी 2 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन रहेगा, उस सेकेंड इक्वेशन में ही हमें वो डालना है. मतलब अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू निकाला है तो हम लोग अनदर जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें वो वैल्यू डालने वाले हैं. सो लेट्स स्टडी इट. हियर आई एम टेकिंग सेम इक्वेशन लिए है और इसका आंसर भी सेम आने वाला है. लेट अस गिव इट नंबर इक्वेशन 1 एंड 2. अभी हम लोग इसका जो अभी जो ट्रिक्स स्टडी किए हैं वो देखते हैं. फर्स्ट ट्रिक में बोला है कि सिलेक्ट अ वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट इज 1. तो इफ़ यू ऑब्जर्व these 2 equations, you can see here y have coefficient 1 plus 1. So I am selecting now equation number 1 to create a value. So from equation 1 I am taking this 2x on another hand side, so it will become minus 2x. So this is our equation number 3. So substitute this equation number 3 in remaining equation. The remaining equation is this one. So I am substituting this equation number 3 or the value of y in equation number 2. So after substitution, see here I write this equation number 2 and this is the substitution from equation number 3. Now remove this bracket. So ब्रैकेट के बाहर अभी यहाँ पे माइनस सिंबल है, तो अंदर जो सिम्बॉल्स रहेंगे वो अल्टर एक्सचेंज हो जाएंगे. सो दिस +4 बिकम माइनस एंड -2 बिकम प्लस. नाउ टेक दिस -4 टू अनदर हैंड साइड, सो इट विल बिकम प्लस. नाउ ऐड दिस बोथ साइड्स. इफ वी ऐड दिस बोथ साइड्स वी विल गेट 5x इज इक्वल टू 5. नाउ टेक दिस 5 टू अनदर हैंड साइड, we will get value of x is equal to 1. अभी ये जो x की वैल्यू आई है वो हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, हमें एक ही आंसर मिलेगा. बट ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज यहाँ से हम लोग को y का डायरेक्टली वैल्यू मिलने वाला है. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन. So after solving we will get y is equal to 2. तो हमें अभी देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन 1 और 2 मिला है. सो बाय यूजिंग बोथ मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी विल गेट सेम सॉल्यूशन, सेम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. लेट अस स्टडी सम मोर एग्जांपल्स बाय एलिमिनेशन मेथड ओनली. हम लोग अभी यहाँ से सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के 2 एग्जाम्पल्स सीखने वाले हैं. नाउ ऑब्जर्व दिस गिवन इक्वेशंस. इन बोथ इक्वेशंस यू कैन सी x and y both have some coefficients. So first step is give it numbers, suppose equation number 1 and equation number 2, and now use these tricks. Select those variable who have same coefficient. अभी यहाँ पे सेम कोइफिशिएंट आप देख सकते हो, नो यहाँ पे सेम कोइफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे.
व्हेन कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम देन मेक इट सेम. तो हमें यहाँ पे अभी कोएफिशिएंट्स सेम करने हैं सो दैट वी कैन एलिमिनेट, वी कैन कैंसल इट. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने y एलिमिनेट किया था. अभी मैं आपको x एलिमिनेट करके दिखा रही हूँ. आप y भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हियर आई एम नाउ चूजिंग x फॉर एलिमिनेशन. सो हियर आई एम मेकिंग इट सेम. तो दोनों का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वी विल गेट 15. सो हियर आई एम फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 3. अभी देखिए यहाँ पे 5 3 ज़ा 15x, देन 5 2 ज़ा 10y और 5 4 ज़ा 20. ये 5 4 ज़ा भी करना है, हमेशा ये स्टूडेंट भूल जाते हैं एंड दे आर मेकिंग मिस्टेक देयर. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 क्योंकि हमें यहाँ पे 15 करना है. ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट इक्वेशन नंबर 4. 5 3 ज़ा 15x, 5 4 ज़ा 12y एंड 3 4 ज़ा 12y एंड 3 6 ज़ा 18. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. तो अभी हमें इक्वेशन 3 और 4 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. इन इक्वेशन 3 एंड 4 यू कैन सी 15x. दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट अभी सेम हुआ है x का. सो अगेन वी विल अप्लाई दिस ट्रिक. व्हेन कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम हियर वी मेक इट सेम. नाउ ऑब्जर्व देयर साइंस. अभी हमें इसका साइन ऑब्जर्व करना है. दोनों इक्वेशन में 15x का साइन इज नॉट गिवन, तो वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव सिंबल है. ओके, मीन्स वहाँ पे सेम सिंबल्स है. 15x and 15x both have same symbol. So when there is same symbol, do subtraction. हमें subtraction करना है. So subtract equation number 3 and 4. So this is the writing method. अभी यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पे दिख रहा है सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं. इसके लिए इनके जो साइंस है वो साइन हम लोग एक्सचेंज करेंगे. तो जहाँ पर भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे ऑल साइंस आर पॉजिटिव, सो देयर अल्टर सिम्बॉल्स आर नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव. नाउ यू कैन eliminate this 15x, so its value become 0. Next step is 10y minus 12y which is equal to minus 2y and 20 minus 18 is equal to 2. So from this equation we will get value of y is equal to minus 1. Now you can substitute this value in any one of these equation. Here I am choosing equation number 1 because it is in simple form. So आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. देखिए यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका आंसर -2 आने वाला है. टेक दिस -2 टू अनदर हैंड साइड, इट विल बिकम प्लस. सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6. देन टेक दिस 3 टू अनदर हैंड साइड, इट विल गेट डिवाइड एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस simultaneous equation is first write down value of x and then value of y in alphabetical order. Let us study one more example. 5x plus 4y is equal to 23 and second equation is 4x plus 5y is equal to 22. Here I am giving their numbers, equation 1 and equation 2. Now observe these both equations. In both equation you can see their coefficients are exchange. मतलब जहाँ पे x फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोइफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का है एंड सेम फॉर सेकेंड कोइफिशिएंट आल्सो फॉर 4. सो इन सच केस वी विल फर्स्ट ऐड एंड देन सब्सट्रैक्ट. यहाँ पे हम अभी जो सिम्बॉल्स है जो कोइफिशिएंट्स है वो सेम नहीं करने वाले. We will directly first add and then subtract. So let us add first. So when we add equation number 1 and 2,
we will get 9x plus 9y is equal to 45. So here we have to remove this 9. तो अगर ये 9 हमें रिमूव करना है, then we have to divide it by 9 1. So here I am dividing by 9 1. We will get x plus y is equal to 5. So this is our equation number 3. Similarly, we will subtract equation 1 and 2, and after subtraction we will get equation number 4 in this form. हम लोग अभी यहाँ पे ही माइनस सिंबल लेके अगर सॉल्व करेंगे, सो 5 minus 4 is equal to 1. Here 4 minus 5 is equal to minus 1. So x minus y is equal to 5. ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा. अभी इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करो. दोनों इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें 1 1 ही दिख रहे हैं, तो यही आंसर आने वाला है. यहाँ पे ये जो कौन सा भी कोएफिशिएंट लो, व्हेन यू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, हमें जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा जिसका दोनों का x और y दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा. ओके अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा. नाउ हियर आई एम डायरेक्टली एडिंग इक्वेशन 3 and 4. सो आफ्टर एडिंग, बिकॉज हियर symbol of y you can see plus and minus, so I can subtract it or I can eliminate it. So that is why here I am adding equation 3 and 4. So when you add it, this y will get eliminate and we will get 2x is equal to 6. So therefore value of x is equal to 3. Now substitute this value in equation 3, otherwise in equation 4. Here equation 3 is easier one. So here I am substituting this x is equal to 3 in equation 3. So first write down this equation 3 and then substitute, take this 3 to another hand side. So you will get y is equal to 2. Therefore the simultaneous solution for this equation is, first write down value of x and then value of y in alphabetical order. So in this video we study standard form of linear equation, then some properties related to that standard form. उसके बाद में हमने आइडेंटिफाई किया इज गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल और नॉट, वो आइडेंटिफाई किया वो प्रॉपर्टीज यूज करके. देन वी स्टडी 2 मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने अगर कोएफिशिएंट सेम दिया है तो डायरेक्टली एडिशन या सब्सट्रैक्शन, इफ़ इट इज़ नॉट सेम देन मेक इट सेम. और अगर इस कंडीशन में रहे जिसमें कोएफिशिएंट एक्सचेंज रहेंगे तो फर्स्ट एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन, ये सब सीखा. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.